میرے آقا میرے مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ اور رمضان امتیوں کا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات ایسی رات ہوتی ہے کہ پروردگار پوری طرح سے اپنے امتیوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنی رحمتوں کی برسات کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان اگر پتہ چل جائے میرے امتیوں کو کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال پوری سال جو ہے رمضان ہی ہوتا۔ اسی رمضان کی برکتوں کو لوٹنے کے لیے 15ویں رمضان میں شامل ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہے۔ تاخیر صحیح لیکن رمضان کی برکتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، میں ہوں آفاق احمد، آپ کا میزبان، اور ہمیں علم دین سے آراستہ کرنے کے لیے جن کی کوئی تعریف ہم کیا کریں، ساری دنیا جانتی ہے اور ہر کوئی پہچانتا ہے کہ ایک پائے کے بزرگ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں جو اپنے واعظ و نصیحت سے اور اپنے علم سے پورے ہندوستان میں روشنی پھیلا رہے ہیں۔ ہندوستان کے نامور عالم دین حضرت علامہ مولانا امام الدین صاحب قبلہ صدر مدرس دارالعلوم باجہ اسب یو پی سے تشریف فرما۔ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آج کی جو نشست ہے وہ صرف رمضان المبارک کو لے کر ہے، پھر اس کے بعد حج و عمرہ پر بھی ہم تبصرہ کریں گے۔ حضرت کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ ماہ مبارک کتنا برکت والا ہے اور اسلام کے نزدیک یہ مہینہ کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جس ماہ مبارک میں ہم سبھی لوگ ابھی موجود ہیں، یہ برکتوں رحمتوں کا خزانہ لیے ہوئے اپنے دامن میں تشریف لایا ہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو صرف اس لیے ہم تمام بندوں کو عطا فرمایا ہے کہ ہم لوگ اس ماہ مبارک میں کوشش اور محنت کر کے خوب ثواب جمع کر سکیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عام دنوں میں اگر آدمی ایک دفعہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے، ایک عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ایک ہی نماز کا ثواب اسے ملتا ہے، لیکن رمضان شریف کے آتے ہی 70 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں ایک مختصر اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں۔ 12 مہینے سال میں ہوتے ہیں تو رمضان شریف کا مہینہ اگر آپ نکال لیں تو 11 مہینے بچتے ہیں۔ ایک مہینے میں 30 دن ہوتا ہے اور ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس طریقہ سے ایک مہینے میں آپ 150 نماز ہی پڑھیں گے اور 150 نماز ہی کا ثواب حاصل کریں گے۔ اس طرح 11 مہینے اگر آپ نے پوری کوشش کر کے محنت اور لگن اور جوش کے ساتھ سردی گرمی برسات ہر موسم سے متصادم ہو کر اگر آپ نے محنت شاقہ کیا تو پورے سال میں آپ کو 1650 ہی نمازوں کا ثواب ملے گا 11 مہینے میں۔ لیکن یہ ماہ مبارک اتنا مبارک اور مقدس ہے کہ 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں تو 70 گنا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی ایک دن نماز پڑھنے پر 350 نمازوں کا ثواب خود عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح اس ماہ مقدس میں اگر آپ نے محنت لگن جوش جذبہ کے ساتھ اپنے آپ کو نماز سے صرف قریب کر لیا تو 10,500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یعنی 11 مہینے آپ نے محنت کیا تو کل 1650 نمازوں کا ثواب ملا، اور اس ماہ مبارک میں اگر آپ نے محنت اور لگن کے ساتھ کام کیا تو 10,500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ صرف نماز کا تعلق سے ہے، اس کے علاوہ جو اور تلاوت قرآن ہے، ذکر و اذکار ہے، درود شریف کا ورد ہے، بے شمار خدا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تراویح بھی تو شامل ہے، تراویح کی نماز شامل ہے، ایکسٹرا نمازیں پڑھی جاتی ہے، آدمی نوافل میں جوش بھرتا ہے۔
फिर इस महीने में बहुत आसानी के साथ आप तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लेता है, क्योंकि सहरी में जगना ही है, तो सहरी की बरकत से तहज्जुद से भी आदमी करीब हो जाता है। तो सहरी की बात अगर हम कर लें तो इसमें बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसमें उसका एहतराम नहीं करते हैं, उसके ताल्लुक से क्या करें? सहरी में देखिए, खेल कूद में नमाज नहीं, बिल्कुल मैं देखता हूँ तो मैं क्या बताऊं, इस ताल्लुक से कभी कभी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये माह मुबारक तफरीह के लिए नहीं, बिल्कुल इस माह मुबारक के देने का मकसद ही यही है कि आओ मेरे बंदो, आओ मेरे बंदो, रहमत का दरवाजा खुला है, बरकत का दरवाजा खुला है, मैं बांटने पर आमादा हूँ, आओ दामन फैलाओ, मांगने से सेवा मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा। तो अगर जो आदमी लहवो लैब में अपना वक्त जाया करता है वो कम नसीब है, वो इस माह की अहमियत से वाकिफ नहीं है। काश हम लोग इन चीजों से अपने आप को बचाकर सिर्फ और सिर्फ इबादत पर फोकस करें, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि इस माह मुबारक के सदक़े में हर बंदे खुदा अपने नामा अमाल पे बेशुमार नेकियों का इजाफा कर सकता है। हजरत, हम जानना चाहेंगे, हम अपने लोगों को बताना चाहेंगे कि आमद रमजान किस तरह से करे, उसका स्वागत किस तरह करे, उसके खुशामदीद कैसे करे। देखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अजमत निशान है कि जो आदमी रमजान के आने पर खुश होता है और रमजान के जाने पर गमगीन होता है तो अल्लाह उस पे जन्नत वाजिब फरमा देता है। तो हम खुश कैसे हों? देखिए, अगर हमको कपड़ा खरीदना हो तो मार्केट जाना पड़ता है, पानी पीना हो तो हमको कंपनी जाना पड़ता है या नल के पास जाना पड़ता है। यानी जरूरत की जो भी चीजें हैं, अगर मुझे चाहिए तो हमें उस जरूरत की जगह पे जाना पड़ेगा। लेकिन वाह रे रमजान, क्या तेरी शान है। जब रमजान शरीफ का मुबारक महीना होता है तो रमजान कहता है कि सुनो, हर जगह तुम्हें जाकर सवाब मिलता था, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तशरीफ ला रहा हूँ। यानी कि कुआं प्यासे के पास आ रहा है। जी, कुआं प्यासे के पास आ रहा है, आ जाओ, बरकत रहमत लूट लो। तो रमजान शरीफ के आने से पहले तैयारी इस तरह करे कि पहले से खूब तिलावत कर ले, नमाज की आदत बना ले, दरूद शरीफ पढ़ने की आदत बना ले, ताकि रमजान शरीफ आने के बाद उसको दिक्कतों का सामना न करना पड़े और कोई भार महसूस न हो, आसानी के साथ वो सारी इबादतें करे। आपने सुना होगा, मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब शाबान का महीना आता था तो मेरे नबी कसरत के साथ रोजा रखते थे। साहबा फरमाते थे कि हम लोग को शक होने लगता था क्या रमजान आ गया, आखिर मेरे नबी कसरत के साथ रोजा क्यों रखते थे? एहतराम रमजान, रमजान की तैयारी के ताल्लुक से, ताकि अभी रमजान से पहले जब रोजा रखेंगे तो आदत पड़ जाएगी और रमजान में आसानी के साथ रोजा रखेंगे। मेरे नबी ने ये अपने लिए नहीं किया, नबी तो मुकम्मल इसी काम के लिए दुनिया में तशरीफ लाए थे, ये तालीम उम्मत के लिए कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरी आने वाली उम्मत ऐसा करेगी और रमजान में उसके लिए आसानी होगी। तो रमजान में रोजे जो रखे जाते हैं, ये रोजा क्या है? देखिए, रोजा ये जिस्म की ज़कात है। अच्छा, जैसे माल साल पूरा होने के बाद हम ज़कात देते हैं तो हमारा माल पाक हो जाता है, तो उसी तरीके से 11 महीने खाइए पीजिए और 11 महीने के बाद जब 12वां महीना रमजान शरीफ का है तो आप रोजा रखिए। मैंने हदीसों में पढ़ा है कि ये जिस्म की ज़कात है, माशाअल्लाह। और जिस तरीके से माल ज़कात देने से माल पाक हो जाता है, इसी तरह रोजा रखने से जिस्म भी पाक हो जाता है। जाहिरी और साइंटिफिक इसे क्या कहेंगे, कैसे होता है? देखिए, जाहिरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम रोजा है, आदमी लोगों ने यही समझ लिया है। हालांकि नहीं, आंखों का भी रोजा है, जबान का भी रोजा है, हाथ और पैर का भी रोजा है। मतलब अगर आप इस्लामिक रूप से आप देखिएगा तो जैसे हमको भूख लगी है और खाना हमारे घर में मौजूद है, प्यास लगी है, पानी हमारे घर में मौजूद है, इसके बावजूद हम न खाते हैं न पीते हैं। क्यों? हमें इस बात पर यकीन है कि अल्लाह ने रोका है, इसलिए हम नहीं खा पी रहे हैं। तो रोजा गोया हमें बुराइयों से रोक रहा है, बिल्कुल हमें बुराइयों से और अच्छी चीजों का आदी बना रहा है। तो गोया रमजान जब आता है तो साल भर में एक मर्तबा सिखाने के लिए आता है कि रमजान में सीख लो कि बुराइयों से कैसे रुका जाए और नेकियों की तरफ कैसे कदम बढ़ाया जाए, और उसी प्रैक्टिस किए हुए माहौल को पूरे 11 महीने। कई हिकमतें हैं कि अगर बंदा सच्चे दिल से और अल्लाह के खौफ से अगर वो रोजा रखे तो उसकी सारी गलत बीमारियां खत्म हो जाएगी। सिगरेट बीड़ी से वो निजात पा जाएगा, वो अपनी तमाम उन गंदी चीजों से जो वो आम दिनों में करता है उससे वो पाक हो जाएगा और आगे दिनों में वो कामयाब हो जाएगा, उससे सारी बुराई जो है दूर हो जाएगी। जी, मतलब क्या इस रोजे से एहसास भी होता है? क्या लोग गरीब किस तरह होते हैं, पड़ोसी भूखा किस तरह होता है, ये तमाम एहसास भी आता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। देखिए, रमजान शरीफ के महीने में बहुत सारी चीजों के सीखने का मौका मिलता है।
जैसे किसी आदमी से कहे भाई पान गुटखा छोड़ दो, हाँ। लेकिन वो नहीं छोड़ता है, रमजान आते ही वो छोड़ देता है, छोड़ देता है, बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त करता है कि नहीं। इसी तरीके से आम दिनों में 17 रकत पढ़ना उसके लिए दुश्वार है, रमजान आते ही 17 + 20 तरावी भी वो पढ़ रहा है। तो रमजान के आते ही जो है ना हर चीज में इजाफा हो जाता है, और साथ ही साथ जब आदमी भूखा रहेगा तो दूसरे के भूख का एहसास करेगा, दूसरे की गुर्बत को समझेगा, और फिर माह रमजान के सदक़े में अल्लाह ताला ने गुरबा, मसाकीन, फुकरा और जो भी इस किस्म के लोग हैं उनकी मदद करने का एक सिस्टम भी बनाया है। यही रमजान की तमाम चीजों को जब वो एहसास करता है कि उसे एक आदमी किस तरह से भूखा होता है, तो उसको देने का जज्बा बढ़ जाता है, उसकी ज़कात निकालने का भी जज्बा बढ़ जाता है कि वो किसको दे, किस तरह के आदमी को दे। जी, ये भी सारी चीजें उसमें शामिल है। बिल्कुल शामिल है। और ज़कात तो इस्लाम का इतना अजीमुशान अमल है कि अगर इंसान इसको कायदे से फॉलो कर ले तो कोई भी समाज में 10-20 साल में गरीब नहीं रहेगा। मैंने एक आंकड़ा अपने हिसाब से निकाला है, जैसे फकीर 2 तरह के होते हैं, एक तो वाकई वो फकीर है जिसको शरीयत ने फकीर माना है, और एक है प्रोफेशनल फकीर जो आम तरीके से लोग मतलब भीख मांग रहे हैं। तो ज़कात की रकम किसी भी हाल में आप प्रोफेशनल फकीर को न दो, बिल्कुल न दे, इसलिए कि आपको पता ही नहीं उनके बारे में। लेकिन प्रोफेशनल उलमा भी तो घूम रहे हैं, नकली जाली बना के रसीद बनाकर घूम रहे हैं वो। बिल्कुल, अगर जो भी ऐसा काम कर रहा है उसको खुदा की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। देखिए जर्रे जर्रे का हिसाब कतरे कतरे का, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो अगर आपने जर्रा बराबर सवाब का काम किया तो आप उसकी जजा पाएंगे, अगर आपने गुनाह का काम किया तो उसकी सजा पाएंगे। खा वो फकीर हो, खा वो आलिम हो, खा वो मुफ्ती हो, कोई भी अगर इस्लाम के पैटर्न से हट के काम कर रहा है और वसूल शरअ के खिलाफ कर रहा है तो वो सजा का मुस्तहिक है। ज़कात कौन कौन ले सकता है, किस पर वाजिब हो सकती है, मतलब कौन शख्स ऐसा है जो मजबूरी में ज़कात ले? देखिए जैसे आदमी मुसाफिर है, घर में उसके बहुत सारे उसके पास मालो मता है, लेकिन सफर में उसका माल किसी ने चुरा लिया, हादसा पेश आ गया, अब वो इस लायक नहीं है कि वो अपने घर तक फायदे से पहुंच सके, तो शरीयत ने छूट दिया है, उतनी देर के लिए वो ज़कात का मुस्तहिक हो जाएगा, ज़कात तो ले सकता है। इसमें सैयद घराने के भी लोग शामिल हैं? देखिए सैयद को ज़कात लेने के लिए तो मना है, तो सैयद ज़कात नहीं ले सकता है, सैयद को ज़कात देना जायज नहीं है। अगर साहिब निसाब हो जाए तो वो ज़कात देगा, लेकिन वो खुद ज़कात नहीं लेगा। ये तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है। सफर में अगर उसके साथ खुद हादसा हो जाए, सफर में अगर उसके साथ हादसा हो जाए तो मैं इसमें कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन मैंने उलमा से यही सुना है कि सफर में जैसे कोई आदमी घर पे है मालदार और साथ ही साथ वो उस वक्त मुस्तहिक हो गया, तो ये नियत कर ले कि भाई इस वक्त मैं ज़कात की रकम से अपनी जरूरत पूरी कर ले रहा हूँ, घर पहुंच करके मैं इस रकम को वापस कर दूंगा। तो मुस्तहिक कौन कौन है? देखिए मुस्तहिक में तो अभी मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने अभी एक इन्हीं साल जो है ना उन्होंने एक नया फतवा जारी किया है कि कौन ज़कात देगा और कौन ज़कात लेगा। तो जैसे आम तरीके से लोग कहते हैं कि 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या मतलब इसके बराबर उसके पास रकम हो, तो ऐसा इस दौर में बहुत कम लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। हर आदमी इस कैटेगरी का इस दौर में आ गया है कि थोड़ा उसके पास सोना है, थोड़ा चांदी है, थोड़ी रकम है, हर आदमी इस कैटेगरी में आ गया। तो मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने कहा कि 65,000 रुपया अगर उसके पास है या 65,000 रुपया के बदले सोना या चांदी है, यानी 65,000 की मालियत अगर उसके पास है तो वो साहिब निसाब है। अच्छा, इस 65,000 के कितने दिन बीते? वो साल हलाने हौल शर्त है ना, 1 साल पूरे बीतने चाहिए। अगर वो 1 साल रखा हुआ है 65,000 या उससे ज्यादा, तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। तो अब लेगा कौन? लेगा मिस्कीन और फकीर। मिस्कीन और फकीर भाई जिसके पास एक वक्त का खाना हो या एक वक्त का खाना के अलावा एक वक्त का और खाना हो, ऐसा अगर वो गरीब है तो वही वो ज़कात की रकम ले सकता है। और अगर 65,000 से कम है उसके पास तो ज़कात लेगा नहीं, देगा नहीं, लेकिन ले नहीं सकता है। मतलब देने का देगा तो नहीं वो ज़कात, क्योंकि वो साहिब निसाब नहीं हुआ, लेकिन वो ले भी नहीं सकता। लेगा वही जो मिस्कीन और गरीब होगा। आपने सुना होगा नबी की हदीस कि एक जमाना आएगा कि लोग ज़कात लेकर हथेली पर घूमेंगे कि मैं किसको ज़कात दूं। मैंने जो एक सर्वे किया है फी जमाने ना वो वक्त शुरुआत हो चुकी है। अगर आप मुस्तहिक के ज़कात को ढूंढेंगे आफाक भाई तो शायद ही आपको कोई मुस्तहिक ज़कात मिलेगा। आप वीडियोस देखिए, जो लोग फकीरी कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, वो इंतकाल कर गए, रास्ते में कोई हादसा पेश आ गया तो 2-2 लाख रुपए उनके जेब से निकल रहा है, चिल्लर मिलता है। हाँ, तो जिसके जेब से 2 लाख निकला वो तो खुद साहिब निसाब हुआ, वो ज़कात कैसे ले सकता है?
तो इसीलिए ज़कात देने वाले पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो बहुत ही छान फटक के ज़कात दे। क्या ऐसे वक्त में जब आप कह रहे हैं कि शुरुआत ऐसी हो चुकी, तो ऐसे दौर में क्या उन बच्चों के इमदाद ना की जाए, उनकी मदद नहीं की जाए जो पढ़ने लिखने में जिनको फीस की जरूरत हो? तो क्या ये ज़कात का पैसा उस बच्चे के फीस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, इस दौर में तो तालीम पर फोकस करना बहुत जरूरी है, बहुत लाजिम है। और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का एक वक्तव्य शायद आपने सुना हो कि मैं मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ। यानी तालीम की बात सभी कर रहे हैं, घर घर तालीम का शोर है, हर नारा लगाया जा रहा है। तो अगर वाकईतन कोई बच्चा है जो ब्रिलियंट है, पढ़ना चाहता है, आगे तरक्की करना चाह रहा है, लेकिन उसके पास इतनी रकम नहीं कि वो फीस भर सके, तो ज़कात की रकम से आप उसकी फीस भरिए ताकि वो पढ़ लिख करके कामयाब बिल्कुल भर सकते हैं। शब कद्र को ले लेते हैं कि शब कद्र की किस तरह से उसको किया जाए, गुजारी जाए। देखिए, ये तो 1000 रातों से अफजल ये रात है। कुरान पाक में साफ साफ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। और इस रात में इबादत करने वाला यकीनन अल्लाह का महबूब बंदा होता है। तो इस रात को मुकम्मल तरीके से भाई तिलावत कुरान तो एक ही है जरिया, साथ ही साथ नवाफिल आप पढ़िए। लेकिन आम तरीके से मैं ये देखता हूँ कि कुछ लोग नफल पढ़ते हैं और पुरानी नमाजें उनके जिम्मे हैं, यानी साल भर नमाज नहीं पढ़ते हैं, और जब शब कद्र की रात आती है तो नफल पे नफल पढ़ते जा रहे हैं। मैं उन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर आपके जिम्मे फर्ज है तो नफल नमाज आपकी नहीं होगी, इसलिए आप क़ज़ाए उम्री पढ़िए। तो जब क़ज़ाए उम्री आप पढ़ेंगे तो आपको डबल फायदा मिलेगा। एक तो आपका फर्ज आपके जिम्मे से साकित होगा, और आपने रात को नमाज पढ़ के जिंदा रखा, शब्बेदारी आपने किया, तो आपको नफल का भी सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा। अलविदा जुमा के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अलविदा क्या बताएं, जब लफ्ज़ अलविदा आता है तो आंखों में आंसू आते हैं। जी कैसे चाहेगा कि उस रमजान को हम अलविदा कहें जिसने हमें ये सारी बहारें, सारी बरकतें, सारी रहमतें अता किया। सहरी का सुहाना मंजर, इफ्तार का वो शानदार माहौल, तरावी का वो अजीम शान मंजर, हम कैसे इसको छोड़ दें? लेकिन सिर्फ अलविदा हम इसलिए कहते हैं कि चूंकि नबी ने कहा है, तो नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए हम इस रमजान को अलविदा, वरना इतना अजीम शान मेहमान को कौन अलविदा कहेगा कि आप तशरीफ ले जाएंगे। जो लोग साल भर नहीं कमा पाते, इस महीने में कमाते हैं। कमाने से हम बात आ गई तो ये भी जान लेना चाहेंगे कि बाज औकात ऐसा होता है कि आम दिनों में जो चीजें खरीदी जाती हैं वो 10 रुपए की होती है, लेकिन रमजान के 2 दिन पहले से ही उस सारी चीजों का बढ़ा दिया जाता है। वो 10 रुपए की चीज 15 रुपए की हो जाती है, और खास करके मुस्लिम कारोबारी इस तरह से शुरुआत करते हैं। तो ऐसे में कमाना तो मना नहीं है, जायज कमाना जायज है ये, लेकिन इतना ज्यादा रकम बढ़ा देना जो लोगों को दुश्वार हो, शरीयत क्या कहती है इस पर? देखिए, मैं उन तमाम कारोबारी हजरात से बहुत ही दस्त बस्ता ये गुजारिश करूंगा कि अगर मार्केट में वाकई उस सामान का रेट रमजान से पहले 10 रुपये है और रमजान आते ही आपने 15 रुपये कर दिया, तो ये कतई दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बल्कि रमजान में तो रेट और घटाइए ताकि नेमत खाने का मौका गरीब से गरीब तर लोगों को भी मिल सके। ये सीजन नेकी कमाने का है, माल कमाने का नहीं। माल तो आप 11 महीने कमा चुके हैं। हमने देखा है कि सऊदी अरब में जितने भी मार्केटें होती सारे रेट कम हो जाते हैं, और हिंदुस्तान में जब हम आते हैं तो यहाँ रेट बढ़ जाते हैं। कमाने का लोगों को मौका मिलता है, तो क्या कमाने के लिए मना किया गया? नहीं, कमाना तो मना कभी नहीं है भाई। तिजारत तो शरीयत ने कभी मना ही नहीं किया, साल के 12 महीने आप तिजारत कीजिए, लेकिन तिजारत को इस तरीके से करना कि रमजान के आने के बाद हम इसमें रेट बढ़ा कर लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसकी कतई तौर पर मजम्मत करते हैं जो लोग भी ऐसा करते हैं। तो ऐसा रिस्क कैसा है? मतलब ऐसा रिस्क जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है, आदमी को बचना चाहिए इससे। इसलिए कि सामने वाला जान रहा है, देख रहा है कि भाई यही सामान अभी हमको एक दिन पहले जो है ना 10 रुपए मिला और आज 15 रुपए में, तो दुरुस्त नहीं है ये। हम जानना चाहेंगे कि ये रमजान का महीने कितने अशरों का होता है? रमजान का महीना 3 अशर का होता है जी। अव्वलहु रहमतुन औसतहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नीरान। नबी पाक अलैहि सलाम का फरमान है। मतलब पहला महीना जो है ना वो रहमत का महीना होता है, दूसरा मग़फ़िरत का महीना है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, और तीसरा अशरा जो है ना वो इत्क़ुम मिनन नीरान, मतलब जहन्नम से आजादी वाला है। तो ये 3 पार्ट में इसको बांटा गया है, 10-10 रोजे का। पहला अशरा जो है ना वो रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है, और तीसरा जो है ना वो। तो इससे यही साबित हुआ कि लोग पहले रमजान में रहमत की दुआ करें जी, फिर दूसरे अशरे में 10 रोजा जो है मग़फ़िरत की दुआ करें, और आखिरी में जहन्नम से आजादी की दुआ करें कि
तीनों असरे में वो, ताकि पहले रहमत मिले, फिर उसे उसके गुनाह माफ हो जाए और फिर उसके बाद वो जहन्नम से आजादी मिले। देखिए रहमत मिलेगी तभी मगफिरत पाएगा, मगफिरत पाएगा तभी इसको आजादी मिलेगी। तो सिस्टम भी इसी तरह बनाएगी। अच्छा, हम ये भी, हम कई लोग ऐसे कहते हैं कि इस महीने में उम्रा अगर करना चाहे आदमी तो वो अपने वालिदैन से पहले ना करे, हज करना चाहे तो वालिदैन से पहले ना करे, जब वालिदैन को करवा ले तो करे। क्या ऐसा है? देखिए ऐसा है कि हज का जहां तक मामला है, हज सब पे फर्ज नहीं है जी। साहिब हैसियत जिसको अल्लाह ने इसे लायक बना, उसकी पूरी कैटेगरी ना पूरा शरीयत ने एक उसूल बयान किया है। बहुत सारी सूरतें ऐसी होती हैं कि माँ बाप पे हज फर्ज नहीं है और औलाद पे हज फर्ज है, तो जिस पे फर्ज होगा वही तो करेगा, जिस पे फर्ज होगा वही तो करेगा। तो अगर बच्चे पे अगर फर्ज है और माँ बाप पे फर्ज नहीं है तो फर्ज पहले वो अदा करेगा ना। हाँ, माँ बाप से इजाजत ले ले, पूछ ले उनसे, खैरियत मालूम कर ले उनकी जो है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि बगैर माँ बाप को हज कराए वो खुद नहीं करेगा, क्योंकि उसके पे फर्ज नहीं है, अभी फर्ज नहीं पे है, तो पहले वो अपना फर्ज अदा करे। तो क्या फर्ज होने पर भी माँ बाप के वो इजाजत ले या अपना फर्ज अदा करे? नहीं, अगर फर्ज उस पे हो गया और माँ बाप पे फर्ज नहीं तो इजाजत लेना भी जरूरी नहीं है, बगैर इजाजत की। तो क्या यही उम्रा में भी है कि वो अपने वालिदैन की इजाजत ले या न ले उम्रा से पहले? देखिए उम्रा न फर्ज है न वाजिब है, ऐसा तो कुछ है नहीं, बस ये है कि साहिब इस्तिताअत अगर है, अगर उसके अंदर अल्लाह ताला ने इतना माल दिया है कि वो इस सफर पे जाए। तो मैं तो अक्सर लोगों से भी कहता हूँ कि अगर आपके पास इतना माल नहीं कि हज न कर सकें तो कम से कम उम्रा जरूर कीजिए। उसकी वजह क्या है, जब आप उम्रा कर लीजिएगा तो आपके अंदर इबादत का जोश जज्बा जग जाता है। फिर जब आदमी उम्रा करके आता है ना तो ना चाह के भी नमाज पढ़ता है। लोग क्या कहेंगे कि उम्रा करके आए नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो अगर अल्लाह ने इस लायक बनाया तो वो जरूर जाएगा। और माँ बाप, अगर अल्लाह ने उसको इस लायक बनाया तो अपने माँ बाप को भी उम्रा पर लेकर के जाए। तो क्या फर्क है उम्रा और हज में? क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक ही हज किया था और उसके बाद आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम का कोई भी अमल हिकमत से खाली नहीं। बिल्कुल। मैं एक दिन गौर कर रहा था कि जब अल्लाह के रसूल को हज करना ही था तो उम्रा क्यों किया? जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता था कि मैं हज करूंगा और ये नेमत मैं अपनी उम्मत को दूंगा, फिर उम्रा क्यों किया अलग से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने? इसमें यही हिकमत समझ में आती है कि मेरे नबी जानते थे कि मेरी उम्मत का हर फर्द इतना इस्तिताअत वाला नहीं हुआ कि वो हज कर सके, तो इसलिए मक्का और मदीना पहुंचने के जरिए नबी ने उम्रा के जरिए से बता दिया कि कम पैसे में भी तुम जाकर के वहां जाकर ज़ियारत कर सकते हो। हज में तो कई फर्ज वाजिब हैं, क्या उम्रा में भी फर्ज वाजिबात हैं? हाँ बिल्कुल है ना। इसमें क्या क्या मतलब ये कि उम्रा, जैसे आप जब उम्रा का हिराम बांधेंगे, समझे कि नियत आप करेंगे, लब्बैक आप पढ़ेंगे, खाने काबा का तवाफ आप करेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे, अपनी तरफ से कर रहे हैं या अपने माँ बाप की तरफ से कर रहे हैं, नियत करेंगे, पूरी प्रक्रिया है उसकी जो है ना। तो 4 अमल ज्यादा है उसमें। जी। पहला अमल सबसे पहले आपको एहराम बांधना है, ठीक है, नियत कर लेनी है। उसके बाद में नियत कर लेनी है आपको, नियत करने के बाद आपको खाने काबा का तवाफ करना है, सफा मरवा की सही करनी है, उसके बाद फिर आपको बाल कटवा देना है। तो जो कहा जाता है कि उम्रा के लिए जब वो खाना काबा पहुंचता है और वहां से तवाफ की शुरुआत की जाती है, तो तवाफ की शुरुआत हजरे अस्वद से ही क्यों की जाती है? देखिए ऐसा है कि खाने काबा का 4 कोना है ना, रुकने अस्वद, रुकने इराकी, रुकने शामी और रुकने यमानी, 4 रुकन है। तो 4 रुकन में से एक ही जगह से तो तवाफ शुरू किया जाएगा, एक ही जगह से तवाफ शुरू किया जाएगा। तो उस तवाफ को शुरू करने के लिए मकामे अस्वद, जहाँ पे जिस कोने में हजरे अस्वद रखा गया है, वहीं से आकाए कायनात अलैहिस्सलाम ने भी शुरू किया है। और उससे पहले भी मतलब जो तवाफ की शुरुआत हुई थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो नसब फरमाया था, वो पूरा वाकया किताबों में मौजूद है कि जब तूफान नू आया तो सारा काबा मिस्मार हो गया, फिर अल्लाह ने हजरे अस्वद को मकाम इब्राहिम को जबल अबू कुबैस में रूपोश फरमा दिया था। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर आया और अल्लाह ने ये चाहा कि फिर से ये काबा बनाया जाए, तो आपने काबा की तामीर बाप बेटा मिल करके शुरू किया। उसके बाद में अब जब ये तय करना हुआ कि कहाँ से तवाफ शुरू किया जाए, तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आया, फिर आपने उस पत्थर को निकाला और निकाल करके आपने उसको नसब फरमाया। किताबों में मैंने ये पढ़ा है कि एक मक्का में 2 एरिया, हल और हरम, हल्लो हरम बोला जाता है। तो
हरम का जो एरिया है वो इस तरह तय पाया कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा के कोने में उस पत्थर को लगाया तो उससे एक रोशनी निकली, तो जहां तक वो रोशनी गई वो हरम का हिस्सा हो गया, और जहां रोशनी खत्म हो गई उसके बाल का हिस्सा हो गया। तो इस तरीके से चूंकि हमारे पैगंबरों का ये तरीका रहा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी, हाँ, इसीलिए वहां से शुरू किया जाता है। एहराम जब बांधते हैं तो कहा जाता है उसमें सिला हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए किसी तरह का, ये क्यों? देखिए, एहराम ये मौत की याद दिलाती है, समझे कि जिस तरह आदमी मरने के बाद सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनता है, वो तसव्वुर किया जाए, वो तसव्वुर किया पहन कर जाना। हाँ जी, क्योंकि देखिए जब आदमी कभी भी बड़ी बारगाह में जाता है तो सज धज कर जाता है, खूब सज धज कर जाता है ना। जैसे नबी की बारगाह में जाइए तो आया कि खुशबू लगा लीजिए, साफा बांध लीजिए, जुब्बा पहन लीजिए, सुरमा लगा लीजिए, सज धज। लेकिन जब खुदा की बारगाह में जाया जाता है तो पूरा अपना लिबास उतारिए, कंघी नहीं कर सकते हैं, आप सुरमा नहीं लगा सकते हालत एहराम में, खुशबू नहीं लगा सकते हैं, तो वहां गोया अपने आप को बिल्कुल आजिजाना अंदाज में, यानी कि दुनिया से ताल्लुक छोड़ देना, हाँ, खत्म कर देना, ताकि याद आ जाए कि देखिए गोया हमने ऐसा लिबास पहना कि यही लिबास मरने के बाद भी पहना है, मौत को याद दिलाती है। हाँ, तो वो नई जिंदगी भी होती है कि यहाँ की जिंदगी खत्म हो के वो खाना काबा और उस दर की जिंदगी शुरू होती है जहाँ से उसका इम्तिहान शुरू हो रहा है। अब आखिरी ये हम कहें कि हज और उम्रा में फर्क क्या है? हज और उम्रा में फर्क तो बहुत है, क्योंकि हज के 5 अय्याम होते हैं, ठीक है ना, और वो भी 5 अय्याम मखसूस तारीखों में है। आप साल भर हज नहीं कर सकते हैं, जिलहिज में ही में आप 8, 9, 10, 11, 12 वही 5 अय्याम हज के हैं, तो उसी मखसूस अय्याम ही में आप हज कर सकते हैं। उसके अलावा आप साल के और किसी भी हिस्से में हज नहीं कर सकते हैं। लेकिन उम्रा के लिए किसी भी महीना और किसी भी तारीख और किसी भी दिन का कोई तयन नहीं है, आप जब चाहे कर सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं, ज़ियारत नबी कर सकते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये हमारा कार्यक्रम था जिसमें हमने चंद बातें थोड़ी थोड़ी आपके सामने लाने की कोशिश की। इंशाल्लाह ये कार्यक्रम, इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू रखेंगे और उलमाए किराम से किसी न किसी मसाइल पर आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे, और जो बातें आपकी होगी हम अपने अंदाज में उनसे सवाल करेंगे और वो आपको जवाब देंगे। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस काम को कामयाब फरमाए और लोगों तक एक इल्म का जरिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।